आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आज़ाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। हम जो काम कर सकें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। সেলফ অটোনমি বেসিক্যালি। একটা স্বাধীনতা আছে আমার মনে হয়, যেটা সত্যি স্বাধীনতা, সেটা হলো মনের স্বাধীনতা। আই এম অ্যান ইন্ডিয়ান and India means everything to me. I am a part and parcel of India. India is a part of my life. I don't have any love for the country. Really? And just I don't want to show off like other people that I got a love for the country. Whom shall I tell? Suppose I got a love. Whom shall I tell that I got a love? Shall I go on the streets and tell everybody, oh, I got a love for my country? One thing I would like to do very much is to go through this country, top to bottom line. So first of all, I'm assuming काफ़ी लोग इसमें तुम्हारी बहुत ही अपर हाई क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, राइट? बिकॉज दे स्पीकिंग तुम्हारी इस तरह की इंग्लिश जो कि आई डोंट थिंक 1967 में, अनलेस तुमने बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, जाने कि तुम बहुत ही अपर हाई क्लास को बिलोंग करते हो कि तुम ऐसे बात कर पाओगे। आई डोंट थिंक एजुकेशन का स्तर उस लेवल पे था जहाँ पे यू नो आराम से नॉर्मल इंडिया जैसे आज फिर भी लोग इंग्लिश में बोल पाते हैं बड़े ईजिली, उस टाइम पे बोल पाएँ। So yeah, he wants to travel country from top to bottom. Take a little bit of money and a pad and paper, a tape recorder and a camera, and I'd like to go to through this country, walking at a very leisurely pace, seeing all kinds of people, different races and different culture, and capture them in their different moods. Vlogger? 1967 का हमारा first vlogger होता भाई। Their songs and their dances and the cacophony of their multifarious tongues. Wow, multifarious tongues, cacophony. Look at the words. To get the agony, the anguish and the anger. राइटर लेवल बातें कर रहा है यार बंदा। बट इसकी तुम्हारी अंदर की चेष्टा भी देखो ना। He wants to travel the entire world. He wants to breathe the air. He wants to just walk at a leisurely pace, not fast. कि हम कहीं we are not going to a destination. No, where I am is the destination. It's a very different perspective of traveling, which this person is talking about. I'm very glad the way he's saying, because traveling का true meaning जो इंसान बता रहा है ये होता है. There is a stark difference between traveling and tourism. कुछ लोग घूमते तो बहुत है दुनिया, लेकिन वो टूरिस्ट तक घूमते हैं. ये जो बात करना ये होता है एक ट्रैवलर, एक ऑब्जर्वर. The fertile soil, the parched earth, wow. Everything, so that one day when I could come back, I could open the book and remind myself of what I'm part of and what is part of me. Wow. Very deep. Existential, identity driven, and deep curiosity to man, they're embedded. August 1947. Well, it means a lot. First of all, it's my birthday, of course, and it's one of the greatest days for India. I think of India when I see the long queues, people waiting patiently for buses, for ration. I think of India when I see people hanging on the local trains. मैडम जी अभी भी मुंबई में लोकल ट्रेन में अभी भी लोग हैंग करते हैं. My needs, of course they're more. I have more money to buy things. I see more things in the market, so I buy them. हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों और एक आधा कमीज या चादर आने जाने के लिए. I like to wear nice clothes, but you know what has happened? I don't get money to buy it. मुझे ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ ज़मीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते. इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए. When I feel that foreign blades are more economical than our Indian blades, why shouldn't I go and use them? Because I save my money. Because I very strongly believe that they serve the much better purpose and are more economical. You know, terribly difficult to get admission. But I don't understand really, being so many colleges, there are so many who just waste a year or 2 because they don't get a seat into a college. If you don't get admission into a college and you just ask them how much extra would you take, you know, you're sure of getting a seat the next minute. Management quota? Not management quota, ये तो होता है ना paid quota. No, I've never ever bribed for a seat in a college or a school. Actually, I feel that this question of bribing is resorted to only by the below the average students. इनका IQ कम है, तभी सालों को पैसा देके देना पड़ रहा है. मेरे को तो ऐसा कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी. आपने चश्मा देखा मेरा कितना मोटा है? क्या रहा है कि आजकल टेक्निकल एजुकेशन फ्री है. हर मैट्रिक या हर सेकेंडरी स्टूडेंट बहुत आसानी से टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकता है और इसके बाद एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है
और अपनी रोजी कमा सकता है। which still applies to this day, by the way, what he's saying. At the end, अगर तुम्हारे पास ऐसा टेक्निकल स्किल है, तुम जिंदगी भर खाओगे. On the contrary, तुम हो सकता है जो लोग के पास तुम्हारी डिग्रियाँ हो, शिग्रियाँ हो, और वैसी जॉब हो जो लैपटॉप के सामने कर रहे हो, तुम उनसे ज़्यादा खाओ. Having said that, तुम्हें ये भी नहीं पता फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जाए. हो सकता है हम ऐसी कारें बना दें जिनको लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो मैकेनिक या फिर इस क्लास जो सर्विस क्लास है जैसे मैकेनिक हो गए या फिर इस तरह के स्किल जो हो गए उनके लिए, क्योंकि हम जो आजकल चल भी रहा है तुम्हारा फ्री रिपेयर या समथिंग करके रिपेयर करके मूवमेंट है, वो यही है कि कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं कि जब वो ख़राब हो तो नॉर्मल इंसान उनको मजबूरन कंपनी के पास ही लेके जाए. ऑल्सो ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जिनका रिपेयर का सिस्टम अब ज़्यादा जा रहा है. हमारे कल्चर में बैक व्हेन आई वाज अ किड द लार्ज कल्चर वॉज, कोई भी चीज़ जब टूटती थी, नहीं चलती थी, कुछ भी थी, हम फेंक नहीं देते थे उसको. पीपल यूज टू रिपेयर थिंग्स, चाहे घड़ी हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे आपके घर में कोई डिवाइस हो, चाहे कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, पीपल यूज टू रिपेयर थिंग्स. तभी आप देखो छोटे में, आई डोंट नो तुम लोग में से कितनी उम्र है, देर यूज टू, तुम्हें सुनाई देता था बहुत ज़्यादा कि ये रिपेयर करने वाला, वो रिपेयर करने वाला. तुम्हारे घर के बाहर लोग लाइक दीज सर्विसेज, इस तरह के लोग जो होते थे तुम्हारे जो सर्विसेज एक्सटेंड करें, ये तुम्हें सुनाई देते रहते थे, बाहर आवाज़ लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम से कम होती चली जा रही है. और ऑब्वियसली वो सप्लाई डिमांड की चीज़ हुआ ना, क्योंकि वो आई थिंक डिमांड उनकी कम होती जा रही है, क्योंकि हम अब यूज टू हो गए, आदि हो गए चीज़ों को फेंकने का, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है और चीज़ें जब खराब हो जाती हैं तो हम काइंड ऑफ फेंक देते हैं, हम उनको रिप्लेस कर देते हैं इंस्टेड ऑफ रिपेयर करने के. स्कूल गए पढ़ने के लिए? पढ़ने नहीं गए. कितना हैंडसम है. हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है. प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है. अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? नहीं मालूम. उज्जैन के कलेक्टर साहब को? अरे ठीक है, हो गया. जानता हूँ. हमारे गांव में तो स्कूल है प्राइमरी और गांव के साथ मिडिल स्कूल है. Well, I would say I'm better off than my father was in almost every respect. In terms of educational opportunities, at least I don't have to work in a mill in the morning to pay for my education in the evening. Well, my ambition is to reach the highest rank which my service can provide. At the moment, of course, it's confined to just being a full general. But by the time I go high up, and if there's a rank of a field marshal, I would like to be the first one. Well, my ambition is to be a great scientist. And as you know, I'm working on meteor. I love that ये लौंडा, of course he's 20, so मैं 6 टाइम ट्रैवल करके अपने दिमाग में 1967 वाले लौंडे से बात कर. Of course अब ये probably he's a बुजुर्ग right now, or I don't even know if he's alive or not. I have no idea, so I wouldn't assume. बट तुम्हारा लौंडा हमारा बिल्कुल स्टीरियोटिपिकली साइंटिस्ट लग भी रहा है. गाइस, अगर तुम अपने दिमाग में सोचो साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट इन द 1960s, Right, and these things which fall from outer space, we don't know much about them. yeah, I want to do something very original about them and Oh, maybe get my wow. name in test books. wow, this is very good. Like जो at least the class of people they've talked to. For some people, security is a warm blanket. For me, security is a government job. Oh, I would like to join the IAS. I would like to sit in a comfortable chair, in an air-conditioned room, sign a couple of files here and there, write my comments in the margin, drink cups of coffee, attend meeting, and just sort of be a cog in the machine. But at least he's honest. I don't know, obviously back then comments didn't exist. Back then there was no likes. तुम्हारा वो सिस्टम नहीं था कि इसको वो बोलना पड़ रहा है, इसको लग रहा है कि रिस्पॉन्स क्या आएगा. ही सेइंग इट फॉर, आई डोंट इवन थिंक कि फॉर अ मैसेज इन अ बॉटल जो कि फ्यूचर में कभी ओपन होने वाला था, एंड वी आर वाचिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक ही एवर थिंक थॉट की, एंड हेंस दी ऑनेस्टी. cog in the machine. What more do you want me to do? वाओ. मैं एक सरकारी नौकरी देखूंगा, अगर सरकारी नौकरी ना भी मिली तो मैं आर्मी में चला जाऊंगा. My ambition is to command a bomber squadron in the operational areas, and later on I'd like to go on to testing aircraft. You know what I mean? I'd like to become a test pilot. वैसे जी मैं एक अच्छे किस्म का फीडर बनना चाहता हूँ. Well, my ambition in life is to glorify myself. I want to go in film line. मुझे लग रहा था आर्टिस्ट है 100%. I want to produce one picture. I got a story also. I knew for the first instant when I saw him, I was like, ये writer है भाई, ये like ये artist आदमी है. But you have money? I will make money. No, see, I'll try my best now. I'll save money now. From somewhere on race. देखिए, हीरोइन बनना तो मैं अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं है, मैं नहीं बन सकूँ. Oh, it felt like it was her ambition. There is that sadness at the end. आंखों में और हल्के से जब बोलती मैं नहीं बन सकूंगी उस सेंटेंस में.
देखिए हीरोइन बनना तो मैं अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं है, मैं नहीं बन सकूँ. See that flicker of like admission या फिर acceptance of that. Progress. Of course we made progress. The sort of progress you show us in your documentary films. But after all, a child would grow, even if it didn't have the sufficient nourishment. Well, I feel happy when I see the big industries of India. At the same time, I feel unhappy when I see that all these industries are being built at the cost of agriculture. Wow. I feel very happy when I see all these fertilizers being made in the factories. Well, they mean that we have progressed a great deal, that we'll have more food because there'll be more land irrigated, that we'll have more industries because there'll be more electricity. It also means there'll be more employment, more production, more happiness. When we compare ourselves to countries like Germany and Japan, we have made no progress at all. I'd been to a village in Saurashtra some 3 years back. Well, Germany and Japan are also very tiny nations in compared to India. Very happy life. I saw that there was an ST bus coming to that village, there were roads, there was a Gram Panchayat radio, there was a windmill in that village. It was all very good. Then a year later I went to an Adivasi area in Gujarat again, and I saw that the people had not even heard of a plane or a train, and I felt that this was not progress. We make rather good aircraft as well. Gnats and vampires. Well, don't ask me, you can go somewhere else. When a mother is in danger, they do abortion, and at that time they call it apadharma. But when the country population is growing like hell and country is going to dogs, they don't understand that it is also a kind of apadharma to save the country. Wow, holy crap! क्या deep बातें कर रहे हैं यार. लॉन्डन ने क्या डायलॉग मार दिया. मजदूरी पूर्ति नहीं है सास. 9 भाई बहन था, 1-2 भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन गोदी में. Well, let me put it this way. I would say our achievement is that we have a hopeful tomorrow. Our failure is that our today is very precarious. But if a country can industrialize itself so well in 15 years, I'm sure that we can lick the problem of agriculture also in the next 15 years. What do you want me to do for the country? I think I did enough by being an honest citizen, by doing my job to the That's actually more than enough. That's a very good answer. best of my ability, by working 8 hours a day, by not complaining much about the rations, about the unavailability of sugar. No, I don't get to see ration queue. I can't see ration queue when I'm standing in bus queue for whole day. How can I go in ration queue? Well, I don't know. It seems to be the fashion today to denigrate the country, and when two people meet, they get into a sort of a competition about who can abuse the government better. I think it's a very human phenomena. I think it's a form of, stress busting exercise. I think दुनिया के जो हर कॉर्नर में होमो सेपियन कर रहा है, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम अपने आप को वेंट आउट करना है चीज़ों को. और अगर मैं तुम्हारे साथ मिल रहा हूँ, तो मेरे मित्र हो, और हम सिर्फ अपनी बातें करें और मैं बताऊँ मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, या फिर मेरे से कितनी गलतियाँ हुई, या फिर मेरी ज़िंदगी में कितनी खामियाँ, फिर मेरे को कितने रिग्रेट हैं, मे बी मैं उससे और चोट पहुँचाऊँगा अपने आप को. मे बी हम रिलैक्स करना चाहते हैं, वेंट आउट करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा हंसना चाहते हैं. इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ रिलीफ, मोमेंट ऑफ जहाँ पे हम जो भी हमारे दिन का जो कॉग्निटिव स्ट्रेस चल रहा है इतना ज़्यादा, उससे रिलीज पा पाएँ. तो एक चाय पी के हम आओ किसी चीज़ पे गाली बक पाएँ, जो कि चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे इतनी, जिसकी हम बात करें तो तुम सुनोगे, तुम ये नहीं कहोगे कि अब इससे हमें क्या करना है, इस पर बात मत कर. तो हमेशा भी बात करता रहता है. सो द गवर्नमेंट या फिर देश की स्थिति या फिर इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल टॉपिक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इवन दो नॉट दैट डायरेक्टली, एंड ऑल्सो इज समथिंग जिस पे हम बात कर सकें, लेकिन जहाँ बात खत्म होती है, हमारी ज़िंदगी जैसे स्टार्ट हुई थी या फिर हमने जो रिज्यूम करी थी, पॉज करी थी, हम वैसे ही रिज्यूम कर लेते हैं. really it's just a conversation जिसमें हम बस बकचोदी कर रहे हैं बेसिकली. दूसरे लड़कों की तरह कोई कुछ खाता पीता है, मैं ये कुछ नहीं खाता पीता, सिर्फ फिल्म ही देखता हूँ. Well, I debate, I take part in dramatics, I like literature. তা অনেক কিছুই করতে চাই. ফ্রেঞ্চ পড়তে চাই, জার্মান পড়তে চাই, রাশিয়ান পড়তে চাই. সে কখনো সময় পাই না, কখনো উপায় পাই না. Well, first and foremost is dancing. I like Indian dancing.
and I'm learning Bharatnatyam at the moment. And then at times I like to hear ghazals. Talking about ghazals, I like Begum Akhtar. I play tennis myself, and I think the Indian tennis players have got a lot of hope. Well, my proudest moment was when we qualified for the Davis Cup finals, and our chaps, Lal, Krishnan and Mukherjee, they did wonderfully well. Probably you must not have heard the Indian whom I really admire, but it happens to be Zubin Mehta, the Indian conductor, who is, I should say, the only Indian conductor. I admire that man Mihir Sen. Not only because he is a wonderful swimmer, besides what he has done sounds almost fantastic. Swimming the 7 straights is not a joke, and I would like to be another Mihir Sen if I can help it. দারুণ ক্যাপ্টেন পটৌডি, কিন্তু আসলে যখন পটৌডি একটা সেঞ্চুরি করে তখন আমার মনে হয় না যে আমি একটা কিছু করি। আমার মনে হয় যদি আমি একটা সেঞ্চুরি করি তাহলে তাহলে আমার সুখ হয়, আমার শান্তি হয়। My favorite director happens to be Satyajit Ray. For obvious reasons, he has the gift of capturing the things in a realistic way, and that's why he's being acclaimed all over. हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी? I don't think there's any future left for us. We have got only a big past to boast of. As Kennedy put it, I think it's a question of not what the country can do for you as much as what you can do for the country. Of course, frustration is in fashion today. But I think deep within every Indian, despite all this frustration, we are underestimating him. He has a capacity to work. I love this. It's 100% true. मैं बात यही है ना कि आफ्टर यू ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड आई वुड से स्पेशली आफ्टर, अगर तुम कभी ज़िंदगी में हो पाए, टेक अ जॉब. अगर कभी जॉब मिले ना, अमेरिका में काम करने का, ऑस्ट्रेलिया में काम करने का, न्यूजीलैंड में काम करने का, यूरोप में कहीं काम करने का, मैं नहीं कहूँगा मिडल ईस्ट इधर साइड में, बट यू नो लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके टेक अ जॉब 1 साल के 2 साल के लिए, एंड यू विल फाइंड अ न्यू फाउंड अप्रिसिएशन ऑफ तुम्हारी खुद की स्टोरी पे भी, ऑफ हाउ यू हैव ओवरकम थिंग्स, तुम किस जगह से आए हो. एंड स्पेशली सो हियर्स द थिंग, अगर तुम बहुत ही अमीर घर से आ रहे हो, और स्पेशली मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि जितने लोगों से तुम मिलते भी हो मोर्स हो यहाँ पे, दे कम फ्रॉम दोज बैकग्राउंड जिनका बचपन से ही होता था कि भैया ये ऑलरेडी फैमिलियर हैं, इनके लिए अमेरिका आना अचीवमेंट नहीं है, इनके लिए अमेरिका आना ऐसा नहीं कि इनकी आंखें खुली हैं, देयर लाइक वाओ. टू द टाइम या फिर टू द मोमेंट जहाँ पे मैं लैंड किया हूँ, मैं अपने दिमाग में हमेशा 50-50 पे जी रहा था कि अभी भी सच नहीं है, अभी भी सच नहीं है. मैं मान नहीं सकता था कि गलती से मैं 60% एक्सपेक्टेशन पुट कर दूँ, क्योंकि वो चूर हो जाएंगी. आदमी को यकीन तब होता है जब एक्चुअल में अपने डॉर्म में या फिर अपनी घर पे यू नो या जहाँ पे भी वो रहने वाला है रेंट पे वो रह रहा होता, फिर उसको रियलाइज होता है भाई ये तो मैं एक्चुअल में ये मेरी रियलिटी है. अब उनकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स जो कि यू नो उनके लिए कि हम अमेरिका क्या होता है, उनके ये रहते हैं वो रहते हैं, हम 40 बार ऑलरेडी जा चुके हैं, वो ऐसे जी रहे हैं जैसे अपना इनका वो है, यू नो नॉट दोस. उनमें वो फीलिंग नहीं आएगी कभी, क्योंकि उनकी रियलिटी वो नहीं रही है जो आप बात कर रहे हैं हम. बट ये चीज़ है कि अगर आप, क्योंकि हम पैदा हुए होते हैं ना छोटे से ही उस जगह पे जहाँ पे हमारा स्ट्रगल और स्ट्राइफ या कंपटीशन कह लो वो हर कोई जी रहा है आपके अराउंड. एक्चुअल में आपकी क्लास में हो सकता है हाँ 2 लोग हों जो कि आप जिनसे रिलेट ना करो, उनका घर ताजमहल जैसा दिखता हो, उनकी बात नहीं कर रहा, बट एवरी अदर पर्सन नॉर्मली हमारे देश में आप देखोगे लाइक दे ऑल्सो दे आर पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल. सो हो सकता है कभी कभी हम अपनी अप्रिसिएशन अपने खुद को करना भूल जाएं, हम ये भूल जाएं हम किस युद्ध में कितने सालों से लड़ रहे हैं और कितना हमने फोड़ा है. क्योंकि उस फोड़ने में जब आप देखते हो लाखों लोग और फोड़ रहे हैं तो आपको उसकी वैल्यू शायद मूल्य दिखता नहीं इतना, आपको उसका चखने में इतना स्वाद नहीं आता. लेकिन आप बाहर जाओगे ना 2 साल के लिए, एक चीज़ आती है कि बड़ू आई डोंट नो, ये एक एडमिरेबल चीज़ है या फिर एक हो सकता है सैड चीज़ भी हो कि एक भारतीय को इतना काम करना पड़ता है, जहाँ पे दुनिया में तुम देखोगे दे डोंट नीड टू वर्क दैट मच, दे रियली डोंट. यू नो लाइक तुम अमेरिकन का सुन लो, चाहे कितने मोटिवेशनल वीडियो हो चाहे कुछ भी हो, एक चाइनीज़ इंसान और एक इंडियन इंसान एक रीज़न है, इवन जापानीज, आई डोंट नो अबाउट जापानीज, बट एशियन बेल्ट जब जाती है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड इंडियन, दे डोमिनेट देयर. एवरेज इंडियंस इन यूएसए में हाईएस्ट पेइंग ग्रुप है या कह लो सब ग्रुप है रेस में, द रेस दैट अर्न्स द हाईएस्ट, यू नो, एंड आई वुडंट से हाईएस्ट बट वी आर यू नो upper middle class group. It's because he has the capacity to work. तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, Indians who are they earn very well.
दे वर्क वेरी हार्ड, एंड ये चीज़ सेम चाइनीज़ में भी मिलेगी तुम्हें, साउथ कोरियंस में भी मिलेगी, एंड जापानीज़ में भी मिलेगी, एंड ये चीज़। बट ऑफकोर्स साउथ कोरिया एंड जापान की रियलिटी हमारी रियलिटी से बहुत डिफरेंट है, एंड ऑफकोर्स कल्चर हमारा काइंड ऑफ वही सेम ही है कि माँ बाप सर पे चप्पल चला रहे हैं और हमें बचपन से कहा जाए कि कंपटीशन इतना भयंकर है, ऐसी कोई हद नहीं है, एंड इसलिए हमारे बच्चों के कंपटीशन लेके मेंटल हेल्थ भी चुदी रहती है बेसिकली। बट अदर देन दैट मैं एक चीज़ कहूँगा, इसको एक्सपीरियंस करना अपनी ज़िंदगी में, you'll find a very, I think you maybe won't, but you may find a self belief in yourself. Self belief है फिर strong belief in yourself. A strong self belief you will find कि hey, अगर तुम इंट्रोस्पेक्ट करते हो और रिट्रोस्पेक्ट करते हो कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ पे तुम जितने लोग साथ काम करो उनकी लाइफ कितनी ईजी रही है in comparison to yours, you will see that, you genuinely see that, like because I know people, मैं तो बताता हूँ जिनकी सैलरी 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार यूरो है पर महीना, ठीक है, and they just fucking enjoyed their life. I know so many people, and I'm not, मैं ऐसे कंट्री में भी नहीं जो कि बहुत ही हाई अर्निंग, बहुत ही हाईली रिच कंट्री है, नहीं है, एंड देयर एवरेज सैलरीज, एंड उनकी रियल स्टोरीज मैं जानता हूँ, दिमाग उड़ जाएगा तुम्हारी, एंड देयर अर्निंग, क्योंकि उन्होंने एक तुम्हारा डिप्लोमा कर लिया कहीं से, लाइक दे लिव देयर लाइफ लाइक सुपर। तुम जो स्विट्जरलैंड वाली रियलिटी है ना जो तुम देखते हो करण जौहर की मूवी में, वो लो तुम रियलिटी को बस, उसके बाद तुम लो यूरोपियन इंसान जो कि जी रहा है वैसे। तो उन्होंने मतलब लड़कियां टहलाई या फिर लड़कियां तो उन्होंने अपनी सिर्फ ट्रैवल किया, जिंदगी जी, बढ़िया खाना खाया, दुनिया मतलब एज स्टूडेंट्स दे लिव्ड लाइक कि लाइक लाइफ में ऐसा थोड़ी है कुछ कि मर रहे हैं वो है, ऐसा कोई यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा या नहीं हो रहा, कि इतने ही सीट्स हैं, मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है, 40-40 लाख लोग एडमिशन दे रहे हैं 1600 सीट्स के लिए, या 80 लाख लोग सीट भर रहे हैं, सब नौटंकी एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक लौंडे के साथ बैठा था, वो हस्बैंड वाइफ ही हम लोग बैठे थे, वो बात कर रहे हैं एक तीसरे इंसान की जो कि जो इंसान बैठा है उसकी बहन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे बता रहे थे वो, मैं बता रहा था सोल्यूशंस क्या क्या हैं, कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था कि ये एंड वो उससे कह रहा है कि वो 20s में वो रियलाइज नहीं करती ये टाइम है उसकी ज़िंदगी जीने का, शी शुड लाइक डेट एंड उसको ये करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, कहाँ लाला, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि लाइक वाओ इट अप्लाइज टू हर, व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। तुम जिस जगह पे हो जोग्राफिकली और जगह में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑफ कोर्स ही व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। तुम्हें यहाँ पे मराने की जरूरत है ही नहीं, कोई नहीं कह रहा तुम्हें कमर तोड़ के काम करो, 12 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, नहीं करो। जिस लौंडे से मैं बात करूँ जो सुन रहा है उसके पास कोई डिग्री नहीं है, ऑल ही डिड इन हिज लाइफ वाज कबूतर की तरह वर्कआउट किया इसने, दैट्स इट, ही इज ऑब्सेस्ड विद बस मसल बना ले, दैट्स इट। एंड थोड़ी मोड़ी ऐसा नहीं कि बहुत ही एजुकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, उसकी जो वाइफ है उसका भी कुछ नहीं है, दोनों लाइक लप्पो झप्पो मौज करने वाले लोग हैं, इंस्टाग्रामर टाइप, एंड दे अर्न लाइक मदर फकिंग क्रेजी, एंड नॉर्मल उन्होंने डिग्रियाँ कर ली नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, मतलब लाइक जॉब्स एम्प्लॉयमेंट सब चीज़ें इतनी ईजी हैं, सैलरीज इतनी हाई हैं, दैट्स व्हाट यू रियलाइज साला वाओ यार हम किस संघर्ष से आए हैं जहाँ पे आदमी कमर तोड़ दे रहा है, गालियाँ सुन रहा है, तब जा रहा है 25,000 कमाने के लिए, 30,000 कमाने के लिए। इट astounds you the geographical differences, क्योंकि हम प्लैनेट अर्थ में ही हैं, एंड इट्स आई रियली थिंक लाइक आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडियंस को कमर तोड़नी पड़ती है काम करने के लिए, क्योंकि काम के लिए कोई इंसान नहीं बना, कोई आपकी आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा है। ऑफकोर्स आपकी सेल्फ को रिकग्निशन मिलता है, मीनिंग मिलता है काम से, अचीवमेंट हैज़ ग्रेट वैल्यू, इसमें कोई डिफाइन नहीं है, बट आत्मा और इंसानियत को जो मीनिंग और पर्पस है और जो खुशी है, दिमाग का जो सुकून जिसे कहते हैं, वो नहीं मिलता कमर तोड़ काम से। सो इसमें एक ट्रेजेडी भी है, मैं ये बात कहूँगा, तो इसको मैं दोनों तरह से देखना चाहूँगा। If all the people in this country who didn't fancy their prospects in it were allowed to quit, I think I'll stay, because it's something big, it's a huge experiment, and I would like to be part of it. तो तुम्हारा JFK ने कही थी। ओके